Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are well, fit and healthy. So student, we are doing, let's revise what we have done in our previous video. We have completed book exercises of the chapter number 13, and after that we also completed short answer questions of chapter number 13, and we are doing long question answer, that is question number E. Question 1 and question 2 we have completed in the book. So now we have to complete question number 3. So note down the question from the book. Note down the question from the book. Why are the northern plains called the food bowl of India? And after this question we will start the new chapter, that is here chapter number 14, Deccan Plateau. Is it clear? So first note down this answer. Why are the why are the northern plains, why are the northern plains, northern fertile plains it is written. What it is written in the book? Northern fertile plains. Why are the northern fertile plains? Why are the northern fertile plains called it the food bowl of India? So note down the answer. Why are the northern plains are called it the food bowl of India? So answer, the northern fertile plains the northern fertile plains or northern fertile plains are called it the food bowl of India because a large, because a large part of wheat and rice produced in India is produced there.
See, why are the northern fertile plains are called it the food bowl of India? See, student, what is the reason for that? Northern plains are known as a fertile plains. Northern fertile plains are called it the food bowl of India because already I explained you when I explained about the northern plains. I told you, student, that if you see the production of wheat in all over India, so all over production of wheat in India, out of 100%, 70% production of wheat is in these northern plains. And out of 100%, if you consider the production of how much rice is produced in India, so out of that 50% of the rice is produced in northern plains. That is the reason these are known as the food bowl of India. Whole country India, I am talking about the whole country India. Out of 170% wheat and 50% rice is produced in this region, that is your northern plains. That is the reason northern fertile plains are also known as the food bowl of India. Is it clear? So student, now this we have completed this chapter. See, there is a hot question in the book. Why do you think? Why do you think that without these river life would be very difficult? Discuss. ठीक है. What is the question? Question बोल रहा है कि अगर ये रिवर्स नहीं होती तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती. Yes, it is true. अगर रिवर्स नहीं होती तो ये प्लेन्स कैसे बनते? रिवर्स तो ही लेके आ रहे हैं. फट ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स इतने ज्यादा फर्टाइल हैं, so when these rivers are coming, they are carrying silt soils or sediments, rock particles of the mountain, and making these plains very fertile. So how all these things are possible? All these things are possible due to the flow of the river. ठीक है. अगर रिवर ही नहीं होती तो इरिगेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वाटर है. अगर रिवर्स नहीं होती तो फ्रॉम वेयर यू गेट द वाटर? ठीक है. क्रॉप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर है. फर्स्टली बिफोर प्लांटिंग हमें क्या है? लैंड को वी वाटर द लैंड. पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. Is it clear? So for the cultivation, the most important thing is that water. And how this is possible? This is possible due to the rivers. Due to the rivers. Is it clear? So student, without it, it is not, life is not possible without the rivers. क्योंकि सी वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं, सी वाटर तो साल्टी है. Is it clear? Sea water क्या? Salty है. So these rivers, due to these rivers, cultivation is possible in this area. ठीक है. जो इतना फूड प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, what is the reason? Reason for that, they are getting water from the rivers. And these plains are fertile also due to the rivers. Next, okay, you do one activity also. You take one physical map. See, open page number 86, all of you. Open page number 86 of your book. It's the activities given. On the map of India, mark the following things you have to mark on the map. Northern plains, you have to show the northern plains from green color. In the beginning of the chapter, when I started the chapter, then at that time I explained you northern plains starts from the state of Punjab and up to where? Some parts of the Assam. So
you have to indicate these northern plains in the map of India. देखो इंडिया का अगर आप मैप देखते हो ना, सबसे जो टॉप से आप देखना स्टार्ट करते हो जम्मू कश्मीर, दैट इज ए हिमालयन रेंज है। वो कैसी रेंज है बेटा? हिमालयन रेंज है। आफ्टर दैट फिर आपके क्या आगे? नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए। ठीक है। सो फ्रॉम पंजाब टू असम तक आप ग्रीन कलर से नॉर्दर्न प्लेन्स को इंडिकेट करोगे मैप में। ठीक है। सेकंड है सुंदर वन डेल्टा। सुंदर वन डेल्टा कहां फॉर्म हो रही है? कहां फॉर्म हो रहा है? दैट आल्सो यू इंडिकेट ऑन द मैप। और रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स से जो रिवर फ्लो हो रही है, रिवर्स विच फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत ज्यादा रिवर्स है। शॉर्टकट के लिए आप ये कर लेना, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस रिवर। यू शो दीज थ्री रिवर्स ऑन द मैप। ठीक है। रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, यू शो दिस थिंग ऑन द मैप। नाउ let's start with the new chapter. So note down, and this is chapter number 14. This is your new chapter and this is chapter number 14. The taken plateau. It's a very important, ठीक है, because India has 6 physical division. ठीक है। So one by one we are discussing all the 6 physical division of India. Now today new chapter, that is your Deccan Plateau. Okay, so Deccan Plateau, it lies in the चैप्टर नंबर 11 में आप लोग को एक वर्ड आया था। ठीक है। देयर इज अ वर्ड इन चैप्टर नंबर 11, इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज पेंसुलर? पेंसुला। ठीक है। व्हाट इज पेंसुला? ठीक है। सो स्टूडेंट, we have already discussed this thing in chapter number 11. So what is a peninsula? A land which is surrounded by three sides with the water. ठीक है। इफ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया का मैप देखो पेज नंबर 74, सी द मैप ऑफ इंडिया, सी, ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। सो दिस पोर्शन,
ठीक है. Now see student, see all of you on the board. ठीक है. If you see that this portion of India, this is a peninsula. Okay, from all the three side it is surrounded with the water. तीनों साइड से ये वाटर से सराउंडेड है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैप, हम जब भी मैप की बात करते हैं स्टूडेंट, देन द टॉप पोजीशन इज ऑलवेज नॉर्थ, and what is the bottom position? That is south. Okay, and then this right hand, that is your east, and left is your west. Is it clear? These are the directions which are given on the map. North on the top, south on the bottom, right side east, and left side that is a west. So these are the directions given on the map. Okay, so student, ये जो पेंसुलर जो शेप है पेंसुला, that this land is surrounded by three sides with a what? With a water. So now here is a triangular shaped Deccan Plateau. ठीक है, यही जो बाउंड्री है, ये जो लैंड पोर्शन है, ठीक है, इसी के अंदर का ये जो पोर्शन है, यही आपका क्या है? प्लेट्यू है. दैट अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू. अब इसके ये व्हाट इज दिस? दिस इज वेस्ट हुआ. ये क्या हुआ बेटा? दिस इज वेस्ट. ये क्या साइड हो गई? ईस्ट. ये नॉर्थ हो गया, ऊपर वाला पोर्शन विच आई हैव नॉट ड्रॉन, बट ये कौन सी साइड आएगी? दैट इज अंडरस्टूड फॉर यू, दैट इज द नॉर्थ. एंड दिस बॉटम, दैट इज here south. So if you see this from the east side, it is surrounded, this land portion is surrounded by Bay of Bengal. East side Bay of Bengal, south Indian Ocean. If you see the south side, this side, then एरो करके लिख दिया सो दैट यू आर एबल टू सी इफ. ठीक है, मैं यहां लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए एरो से ऊंचा कर दिया. ठीक, दिस इज इंडियन ओशन. दिस इज इंडियन ओशन. एंड अब ये जो वेस्ट पोर्शन है, ये वेस्ट साइड, ये यहां पे आपको क्या है? अरेबियन सी. ये आपकी क्या है बेटा? अरेबियन सी है. आ गया समझ में यहां तक? तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेक्कन प्लेटू. ठीक है, अब ये जो पेंसुला शेप आइलैंड जो है आपका लैंड का पोर्शन, विच इज सराउंडेड बाई ऑल द थ्री साइड्स विद द वाटर. अगर चारों साइड से हो जाता है तब ये आइलैंड बन जाता है. इज इट क्लियर? द लैंड विच इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड ऑफ ए वाटर, तब इसे हम क्या बोलते हैं वहां पे? तब हम इसे आइलैंड बोलते हैं. अब देखो, ये लैंड का ऐसा पोर्शन है जो थ्री साइड से सराउंडेड है. दैट इज फ्रॉम द वेस्ट साइड अरेबियन सी, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल, एंड इन द साउथ इंडियन ओशन. ठीक है, यहां तक आ गया सबको? अब देखो, हम लोग थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन करते हैं. ठीक है, इन द फर्स्ट चैप्टर हमने आप लोग को हिमालयन रेंज के बारे में बताया था. हिमालयन रेंज, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड अप टू नैरो होती चली जाती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड देन फ्रॉम जम्मू कश्मीर से हिमालयन रेंज कहाँ पे गई? हिमाचल, देन उत्तराखंड, एंड देन फ्रॉम उत्तराखंड हिमालयन रेंज is in another country, that is Nepal. After that again Indian state Sikkim, and then Bhutan, and again the Himalayas are in Indian state, that is Arunachal Pradesh. ठीक है, तो ये हमने हिमालयन रेंज की बात की थी. ये अलावा ऊपर वाला पोर्शन जो नॉर्थ वाला पोर्शन पढ़ा था हिमालयन रेंज. अब हिमालयन रेंज में हमने थ्री पैरेलल रेंजेस पढ़ी थी. इज इट क्लियर? वन इज हिमाद्री, द ग्रेटेस्ट हिमालयाज.
और देन मिडल हिमालयस विच वी से हिमाचल एंड देन शिवालिक। ठीक है, ये 3 पैरेलल रेंजेस के बाद का जो एरिया आपका स्टार्ट हुआ था वो क्या आपके स्टार्ट हुए थे, नॉर्दर्न प्लेन्स। आई बात समझ में। और जो आपका सबसे पहले वाला देखो देखो 6 फिजिकल डिविजन है इंडिया की। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो सबसे पहले फिजिकल डिवीजन मैंने आप लोग को पढ़ाई दैट इज द माउंटेन्स। वो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया। तो वो क्या है, दैट माउंटेन्स आर वेरी, दे आर वेरी, दे हैव मिनिमम एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इसका मतलब उन माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा है। वो ऐसे एरिया हैं जहां पे ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हिमालयन रेंज। ठीक है, वहां माउंटेन्स की हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद माउंटेन्स की तीनों रेंजेस पढ़ ली, हिमाद्री हो गई, हिमाचल हो गई और फिर शिवालिक। आफ्टर दैट फिर आपके क्या स्टार्ट हुए, फ्रॉम द पंजाब स्टेट, पंजाब से लेके आपके सम पार्ट्स ऑफ द असम, ये आपके क्या चलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये कितने स्ट्रेचेस हैं, 2400 किलोमीटर, ये स्मूथ प्लेन्स हैं। ठीक है, सो फिर आपके आगे नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद जो अब आया, ये आपका आया डेक्कन प्लेटू, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एरिया जिसने आपका कवर कर रखा है इंडिया का, सबसे द मोस्ट एरिया कवर्ड बाई दीज डेक्कन प्लेटू, ये जो डेक्कन प्लेटू है इसने इंडिया का सबसे ज्यादा एरिया कवर करके रखा है। एक एरिया कवर किया आपके, किसने किया, जो हिमालयन रेंज थी। ठीक है, उसकी 3 रेंजेस पड़े। उसके बाद जो एरिया कवर कर रहा है लैंड पोर्शन मतलब, फिर उसके बाद वो कौन आया आपके, नॉर्दर्न प्लेन्स आए। और अब आपको क्या पढ़ना है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आपको पढ़ना है डेक्कन प्लेट्यू। सो जो हम फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो फिजिकल डिवीजन में सबसे ज्यादा एरिया जिसने कवर कर रखा है वो आपके डेक्कन प्लेट्यू ने कर रखा है। इस एरिया इज मोर देन हिमालयन रेंज आल्सो एंड मोर देन नॉर्दर्न प्लेन्स आल्सो। सो दैट इज द रीजन इट्स वेरी, इसने इंडिया का मैक्सिमम पार्ट इस एरिया ने कवर कर रखा है। आपके क्या है ये, दीज आर योर, दीज आर योर व्हाट, दीज आर योर डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब देखो लैंड की क्या कंडीशन आई। सबसे पहले अब थोड़ा सा लेट अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्लेट्यूज, थोड़ा सा समझ लो प्लेट्यूज, उसके बाद फिर इसी मैप पे आ जाएंगे। इस पोर्शन को थोड़ा सा रख करता हूं। what are plateaus, plateaus क्या है आप समझ लो। इट इज जस्ट लाइक ए, फॉर एग्जांपल आप लोग जिस टेबल पे लिखते हो, सबसे सिंपल एग्जांपल, आप स्कूल में पढ़ते हो, यू कम टू स्कूल एंड यू sit on the chair and you on the table you put your copies and books and then you write. Why? And because the surface कैसा है, surface of the table is flat, surface of the, surface, because surface of table क्या है, surface of table क्या है, flat है। Is it clear? इन द सेम मैनर ये जो आपके प्लेट्यूज होते हैं बेटा, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ये ग्राउंड से ये भी हाइट पे उठे हुए हैं, लेकिन ये इनकी तरह नहीं है। जैसे हिमालयन रेंज 6000 मीटर एवरेज हाइट थी, इतने ज्यादा बड़े बड़े पहाड़, एक्सेस हाइट थी इनकी। ये लैंड से अबव, ये जैसे ये पूरे टॉलर रेंज हमने पढ़ी, हिमालयन रेंज एकदम टॉलर रेंज। उसके बाद शिवालिक के बाद हमने बिल्कुल प्लेन्स पढ़ लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो अब इंडिया की फिजिकल डिवीजन हाउ इज इट शोइंग इन द मैप ऑफ इंडिया। टॉलेस्ट माउंटेन्स दैट इज अ हिमालयन रेंज, उसमें हमने हिमालयन, अरे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक पढ़ ली। आफ्टर दैट टोटली प्लेन रेंज आ रही है दैट इज एयर नॉर्दर्न प्लेन्स। अब फिर ये फिर से हाइट वाले आ गए। अब देखो ये लैंड एरिया है, ये फिर से हाइट वाले आ गए, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, दे आर नॉट वेरी टॉल लाइक हिमालयन रेंज में जैसे माउंटेन्स बहुत ऊंचे थे, ये वैसे नहीं है। ये माउंटेन्स हैं
लेकिन इनका जो ऊपर का सरफेस है दैट इज स्मूथ, दैट इज स्मूथ नहीं, दैट इज फ्लैट। ठीक है, ये ऊपर की ओर उठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लैंड मान लिए हम, फॉर एग्जांपल अगर ये लैंड है तो देयर हाइट इज अबव द लैंड, बट इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक हिमालयन रेंज के माउंटेन्स की तरह। एंड फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द टॉप दिस दे आर फ्लैट, फ्रॉम द टॉप दे आर फ्लैट। इज इट क्लियर? सो दैट इज मीनिंग प्लेट्यूज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेट्यूज बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट्यूज। और अनदर नेम इसका है टेबल लैंड भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने किसका यूज किया? टेबल का एग्जांपल दिया कि टेबल की 4 लेग्स होते हैं और अपर सरफेस क्या होता है? फ्लैट होता है, सो दैट यू कैन राइट इजिली। सो प्लेट्यूज, और यू कैन ऑल्सो से दीज आर टेबल लैंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? सो व्हाट आर प्लेट्यूज? प्लेट्यूज द लैंड विच इज अबव द, ऐसे लैंड जिनकी हाइट लैंड से तो ऊंची है, बट दे आर नॉट लाइक टॉल लाइक द लैंड्स ऑफ द हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज में जैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, ये उतने बड़े बड़े नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये तो तुम्हें बता दिया मैंने व्हाट आर प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज आर आल्सो नोन एज टेबल लैंड। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हाउ दीज आर फार्म। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग कि हाउ दीज प्लेट्यूज आर फार्म। सो स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस इन अ वेरी ओल्ड टाइम, हजारों साल पहले कभी वॉल्केनोज ने आए। ठीक है, वॉल्केनोज में से जैसे जमीन के वॉल्केनो फटती है ना, तो क्या कहते हैं, लावा कम आउट्स। ठीक है, वॉल्केनो में से बहुत सा लावा निकलता है, एंड आफ्टर दैट कूल होने के बाद ये इस तरह के लैंड बन गए। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, बहुत पुराने समय में ऐसा वो है कि इन एरियाज में बहुत से इन एरियाज में क्या है, वॉल्केनोज आए, और ये उनका ही लावा है। वॉल्केनोज जब फटते हैं तो उसमें से लावा निकलता है। ठीक है, तो वो क्या, जब कूल हो गया तो उससे ये प्लेट्यूज बन गए। ठीक है, ऐसा भी है। तो एंड अनदर एक रीजन और भी है कि बाई चांस इस एरिया से कोई हो सकता है रिवर जा रही हो, क्योंकि और ये बहुत लंबी प्रोसेस है, हजारों साल से। अगर देखो, आप लोग देखो, जहां से रिवर वाटर जाती है वहां क्या है, जितने भी तुम्हें बताया ना कि माउंटेन्स, रिवर्स, रॉक्स ले आती हैं, मिनरल्स लेके आती हैं, सिल्ट सॉइल लेती हैं, वाटर के फ्लो के संग आ जाते हैं ना। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वाटर द सरफेस ऑफ द थिंग्स बिकम स्मूथ। तो या तो हो सकता है कि बाई चांस कोई यहाँ से बहुत रिवर जाती हो हजारों साल पहले, जिसके वाटर के टच के कारण ये ऊपर से स्मूथ हो गए। और ये रीजन ये भी है कि ड्यू टू द वॉल्केनोस, when the lava cool downs, when the lava of the volcanoes cool downs, then they form the these types of plateaus। ठीक है, तो देखो छोटी सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने तुम लोग को बताया प्लेट्यूज से पेंसुला, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप है ना, तो पेंसुला लैंड क्या होता है? द लैंड विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स विद द वाटर। हियर फ्रॉम द वेस्ट इट इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी, फ्रॉम द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, एंड फ्रॉम साउथ इंडियन ओशन। ठीक है, आफ्टर दैट वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट, माउंटेन रेंज की। फिर हमने बात की कि माउंटेन रेंज वाले एक वो पोर्शन था, फिर आए नॉर्दर्न प्लेन्स, अब आ रहे हैं आपके डेक्कन प्लेट्यूज। तो आउट ऑफ दीज, ये थर्ड फिजिकल डिवीजन मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, थर्ड फिजिकल डिवीजन। फर्स्ट इज द माउंटेन रेंजेस variety, second is the northern plains, now third one is the Deccan Plateau। so one question can be asked with you, which physical division cover the maximum area of the India? इंडिया का सबसे ज्यादा एरिया किस फिजिकल डिवीजन ने कवर कर रखा है? दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यूज। ठीक है, इन्हीं ने सारे इंडिया का अगर आप कंसीडर करो तो सबसे ज्यादा एरिया जो कवर कर रखा है इस डेक्कन प्लेट्यूज ने किया है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लेट्यूज? ये लैंड जो है, लैंड से ये हाइट पे है। ठीक है, लाइक ए टेबल, बट इनका सरफेस क्या है? प्लेन है।
how they are formed? They are formed due to the volcanoes, and when the lava cools down, they change in this form. Okay, अब next day आगे discuss करेंगे. ठीक है student, I hope up to this you all are able to understand student. And in next video I will tell you Deccan Plateau, that how it is divided into two parts, that I will explain to you. Thank you student.